Good evening, sir. Good evening, sir. Evening. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, everybody. So, So you people have attended Tejaswita ma'am's class today? Yes, sir. Yes, sir. What was the strength? 24. 20. Sorry? शाजिब सर के लेक्चर में 20 थी, उसके बाद 24 हो गई थी तेजस्वी मैम। 26. 26, okay. 26 including Shazib sir? Yes, sir. Okay. 13 students as of now. In yesterday's class, all of a sudden the lecture was stopped in between due to the bad network connectivity my side. Yes, sir. Yes, At the end, it was making me out of the meeting in the meeting almost 4 to 5 times. So at a moment I got so pissed off and I normally shuttered my laptop. And with the same moment I got busy somewhere else also, and so I could not post a message in your WhatsApp group that we are going to wind up this class. Okay, 13 students as of now. I think we should start discussion, and the rest of the students can join in between. Okay, give me a moment. I'm just opening my PowerPoint presentation and then I'll take you back to the same slide where we were discussing about. You guys must have got to know that by November 1st, by 1st of November, UGC has issued the guideline to reopen the school and colleges. You got to know that? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Sir. So are you guys excited for that? Yes, sir. Very excited. Yes, sir. I'm excited more than you people because I'm literally getting so bored. Sir, still I've you got get so a bored chance sitting to at go to office, no? college. Yes, there you are saying something. Sir, still you get a chance to go to college in Vinay sir's birthday. Sir, but we haven't go yet. Right. I understand that. But for me, honestly, it has become so monotonous sitting at office now. Right. I'm literally willing to go back to college and start taking lecture. All right, fine. I have opened my PowerPoint presentation. I'll take you back to the same slide. Fine. Are the slide visible? Yes. Is the slide visible to you people? Yes, Yes, sir. Yes, sir. All right, fine. Good evening, sir. Good evening, Raman. Fine. So here we were, and we were discussing about the scope of marketing, right? In yesterday's class, we had a discussion about these points written in front of you. Like we were on the point of packaging. So I was about to give an example that how marketing management is has an applicability, has an applicability in the area of packaging also. कहीं ना कहीं क्या होता है, आप अपने कस्टमर को एक अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए, कस्टमर तक अपनी बात पहुंचाने के लिए अलग अलग तरीके से अपनी बात पहुंचाते हो. एक टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल मैंने उस दिन भी किया था, एक टर्म का इस्तेमाल किया था मैंने, ओमनी चैनल किया था उस दिन, राइट? मैंने आपको बताया था ओमनी चैनल का मतलब क्या होता है. एनीवन? यस, एनीवन हु नोज द मीनिंग ऑफ ओमनी चैनल? चलो मैं आपको बता देता हूँ एक बार ओमनी चैनल का मतलब क्या होता है. ओमनी चैनल का मतलब होता है 360 डिग्री चैनल्स. 360 डिग्री चैनल्स का मतलब है ऑल राउंड. मतलब एक कस्टमर को हर अलग अलग तरीके के मीडियम से कैप्चर करने की कोशिश करना, राइट? बी इट कि हमें अपने एडवर्टाइजिंग के थ्रू उसे कैप्चर करना है, न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट्स देकर के उसे कैप्चर करना है, एफएम पे भी ऐड देना है, टीवी पे भी ऐड देना है, हर जगह से उसको कैप्चर करके चलना है. एम आई क्लियर? राइट. तो उसको कहते हैं ओमनी चैनल बेस्ड एडवर्टाइजिंग. मतलब हर तरीके के एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म को यूज करके अपने कस्टमर तक अपनी बात पहुंचाना.
उसी तरीके से आप देखो जो बात आ रही है पैकेजिंग की, तो पैकेजिंग भी एक अल्टीमेट तरीका होता है जिससे आप अपने कस्टमर तक अपनी पूरी बात पहुंचा सकते हो, राइट? अच्छा, अल्टीमेटली जब कोई पहली बार अगर मैगी लेकर के आएगा, सो हाउ विल ही गेट टू नो कि मैगी को पकाते कैसे? तो आपने देखा होगा कि मैगी के जो पैकेट होता है उस पर लिखा होता है कि 2 मिनट में आप मैगी को कैसे कुक कर सकते हो। क्लियर? पूरा पैकेजिंग पे इंफॉर्मेशन गिवन होती है। ऑल राइट, उसी तरीके से आप देखते हो मैगी, आप किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के पैकेजिंग पर ही उससे रिलेटेड काफी सारी इंफॉर्मेशन गिवन होती है, राइट? ओके, लेकिन काफी बार क्या होता है, आपकी पैकेजिंग भी आपकी ब्रांडिंग करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल बन जाती है। कैसे बन जाती है? जैसे अगर आपको याद हो तो काफी टाइम पहले जब आप लोग छोटे रहे होगे तो आपको पता लगा होगा कि कैल्शियम की जो टैबलेट्स होती हैं वो आती है मार्केट में, राइट? और एक टाइम पे आया था लाइक विमेंस के लिए कैल्शियम सेंडोज की टैबलेट्स। तो जो विमेंस के लिए कैल्शियम सेंडोज की बॉटल्स आई, उन जो टैबलेट्स आई, उनकी बॉटल क्या होती थी? विमेन के फेस के तरीके की होती थी, कि विमेन का फेस होता था प्लास्टिक मुंडी बनी होती थी, मुंडी। सॉरी सर, मुंडी बनी होती थी, हाँ, पिंक कलर की कैप होती थी। बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं आप, राइट? तो उस टाइप की एक पूरी बॉटल होती थी। अल्टीमेटली क्या किया, वो पूरी उनकी पैकेजिंग का ही तो हिस्सा था, राइट? लेकिन उनकी पैकेजिंग का वो आइडिया उनके लिए एक अपने आप में ब्रांडिंग का एक अटेम्प्ट था। आज की डेट में मैं अगर आपको एग्जांपल दे रहा हूँ तो किस बेसिस पे दे रहा हूँ कि उन्होंने क्या शेप लिया था पर्टिकुलरली उन कैल्शियम की टैबलेट्स को रखने के लिए। वो था अगर विमेन के लिए है तो विमेन का ही फेस उसमें बना हुआ था। वेरस अगर आपको याद हो कि जो बॉयज के लिए आती थी, जो मेल्स के लिए आती थी, उनका जो पर्टिकुलर शेप था वो अलग था। वो शायद कुछ किसी पर्टिकुलर एनिमल के उसमें ही था, या छोटे से टेडी के उसमें था, पता नहीं किसमें था, लेकिन हाँ वाइट वो विमेंस का बिल्कुल अलग ही था जो लेकर के आए थे वो बॉटल। am I clear? यहाँ पे क्या लिखा हुआ है इन्होंने? पैकेजिंग टू प्रोवाइड अ कंटेनर और रैपर टू द प्रोडक्ट फॉर सेफ्टी, अट्रैक्शन एंड ईज ऑफ यूज एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द प्रोडक्ट। अल्टीमेटली अगर मैं बात करूं तो मात्र इसका कॉन्सेप्ट इतना सा है पैकेजिंग का कि मुझे अपने प्रोडक्ट को पैक करके अपने कस्टमर तक सही से पहुंचाना है, राइट? लेकिन उसी जगह पे मार्केटिंग मैनेजमेंट की जब एप्लीकेबिलिटी आ जाती है तो मार्केटिंग मैनेजमेंट कहता है कि हर एक चीज जो कस्टमर तक पहुंचेगी हमारी तरफ से, इट शुड हैव अ मैसेज, इट शुड हैव सम इंफॉर्मेशन दैट विल हेल्प अवर कस्टमर टू यूटिलाइज अवर प्रोडक्ट इन द बेटर वे। Am I clear? राइट उसी तरीके से आप देखो, जब भी कोई भी अगर आप इलेक्ट्रॉनिक गैजेट लेकर के आते हो, किचन अप्लायंस लेके आते हो, तो क्या होता है जनरली साथ में एक मैनुअल बुक मिलती है, यूजर मैनुअल मिलता है। यूजर मैनुअल क्यों मिलता है? पैकेजिंग के साथ में क्यों रखा जाता है? जिसमें पैकेट रखा, जिसमें आपका गैजेट आएगा, उसी कार्टन में वो पर्टिकुलर यूजर मैनुअल भी आता है रख करके। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली आप अपने कस्टमर तक वो सारी इंफॉर्मेशन भी पहुंचाना चाहते हो कि कैसे वो अपने उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को सही से यूज कर सकता है। क्लियर है इतनी चीज? मैं एक बार, मुझे लगता है कुछ नए स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया हुआ है आज क्लास में, तो एक बार दोबारा से रिमाइंड करा दूं। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं स्कोप ऑफ मार्केटिंग की मार्केटिंग मैनेजमेंट की एप्लीकेबिलिटी कौन कौन से एरियाज में है। तो अभी हमने जो एक डिस्कस किया वो था पैकेजिंग। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, द वेरी फर्स्ट वन हियर इज चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, राइट? अच्छा, आप लोगों ने देखा होगा काफी बार क्या होता है, कंपनी ने प्रोडक्ट बनाया और प्रोडक्ट बनाने के बाद फिर वो डिसाइड करते हैं कि मुझे अपने कस्टमर तक कैसे पहुंचना है, राइट? अच्छा देखो, मैं आपको यूज बताता हूँ इसका। एक अभी आजकल हाल फिलहाल में एक एग्जांपल चल रहा है, आप लोगों ने देखा होगा आजकल जो 50 रुपए में बॉटल आने लगी है कोको कोला की, उसका बहुत ऐड आ रहा है, राइट? 1.5 लीटर की बॉटल है वो, सलमान खान उसका ऐड दे रहे हैं, राइट? ओके, तो वो ऐड बार बार आता है और आपने देखा होगा उस ऐड में क्या दिखाते हैं कि वो पहले एक पंजा लड़ा रहे होते हैं आपस में, ऑल सडन वो जीत जाता है, फिर वो कहता है ठीक है मैं 50 रुपए में तो कोल्ड ड्रिंक की बॉटल दिलाता हूँ। फिर बहुत ज्यादा एकदम इंटेंस कर देंगे ऐड को, दिखाएंगे कि वो कहाँ से आई, तो कहाँ से आई? वो कहता है दुकान से, राइट? तो दुकान से वाली बात में अल्टीमेटली यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, कंपनी ने कोल्ड ड्रिंक की बॉटल बनाई, बनाने के बाद कस्टमर तक पहुंचानी है, लेकिन कहीं ना कहीं वो इनडायरेक्ट एक मैसेज दे रहे हैं कि ये बॉटल अब आपको नियरेस्ट स्टोर पे मिलेगी। यही मैसेज देने की तो कोशिश करी, और नियरेस्ट स्टोर पे अगर वो प्रोवाइड कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं कंपनी ने ये डिसाइड किया होगा कि कैसे मैं अपना एडवर्टाइजमेंट बनाऊंगा कि मेरे कस्टमर के दिमाग में ये चीज फिट हो जाए कि 50 रुपए वाली बॉटल जो है उनके नियरेस्ट शॉप पे अवेलेबल है। और उसके लिए कंपनी ने पूरी प्लानिंग करी होगी अपने चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की, कैसे कंपनी से निकल करके वो बॉटल सब लोगों के नियरेस्ट शॉप पे पहुंचेगी। सर अभी नहीं पहुंची, अभी जस्ट 5 मिनट पहले ही पता करके आया हूँ मैं। आप 5 मिनट पहले पता करके आए हो ना, तो अल्टीमेटली कहने का मतलब क्या है, कंपनी ने उसके लिए पूरे एफर्ट करे ना पहले। क्या आपको, अच्छा एक बात बताओ, कंपनी ने दोनों में से कौन सा काम कंपनी ने तो मजाक मजाक में अपने मतलब बात भी कह दी और एडवर्टाइजमेंट भी हो गया। बिल्कुल एग्जैक्टली राइट। अब यहाँ पे सोचने वाली चीज क्या है, कंपनी ने 2 काम किए होंगे, लेकिन उन दोनों में से पहले कौन सा किया? पहली चीज है कंपनी ने एडवर्टाइजमेंट बनाया, और दूसरी चीज है कंपनी ने अपनी कोका कोला की वो पर्टिकुलर 50 रुपए वाली बॉटल को सब जगहों तक पहुंचा दिया पहले।
तो दोनों में से कौन सा काम उन्होंने पहले किया? एडवर्टीजमेंट बनाना। एडवर्टीजमेंट। उन्होंने एडवर्टाइजमेंट पहले बनाया होगा या फिर उन्होंने पहले चैनल और डिस्ट्रीब्यूशन पे फोकस किया होगा कि पहले पहले चैनल और डिस्ट्रीब्यूशन पे फोकस करा होगा सर, पहले डिस्ट्रीब्यूशन पे। राइट, पहले उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन पे फोकस किया, उसके बाद उन्होंने एडवर्टाइजमेंट पे पैसा लगाया। क्योंकि देखो अल्टीमेटली एक कस्टमर पे एक नेगेटिव इंपैक्ट जाएगा कि मैंने ऐड देखा, मैं जाता हूँ शॉप पे पता करने और शॉप पे मुझे मिली नहीं। क्लियर है ना? तो पहले चैनल और डिस्ट्रीब्यूशन मेजर हमारा फोकस होना चाहिए कि हाँ ठीक है, हमारा प्रोडक्ट जो हम एडवर्टाइज कर रहे हैं कि हाँ ठीक है नियरेस्ट शॉप पे अवेलेबल है, तो पहले नियरेस्ट शॉप पे पहुंचा तो दूं मैं, तभी तो वो बात बनेगी कि एडवर्टाइजमेंट देख करके कोई बंदा जाएगा और उसे मिल जाएगी वहां पे। राइट, तो मार्केटिंग मैनेजमेंट की एप्लीकेबिलिटी समझ में आती है कि कैसे चैनल और डिस्ट्रीब्यूशन पे पहले आपको पूरा फोकस करना है। नेक्स्ट कम्स प्राइसिंग पॉलिसीज। कहीं ना कहीं आप जब सारी पूरी एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी डेवलप कर लोगे, देन यू विल फिगर आउट कि आपके पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्राइस क्या होना चाहिए। देखो अब मैं दोबारा से आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, कंपनी ने पहले एडवर्टाइजमेंट बनाया होगा या कंपनी ने पहले प्रोडक्ट की प्राइसिंग करी होगी? सब प्राइसिंग। सर क्वेश्चन रिपीट कर दीजिएगा। पहले कंपनी ने ऐड बनाया होगा या पहले कंपनी ने प्रोडक्ट की प्राइसिंग करी होगी? सर पहले प्राइसिंग करी होगी। चलो ठीक है, अगर कंपनी ने पहले प्राइसिंग करी थी राइट, और ऐड उन्होंने बाद में लिया, और अगर उन्होंने ऐड बाद में बनाया और उसमें सलमान खान को लिया, तो सलमान खान ने एंडोर्समेंट के अच्छे खासे पैसे ले लिए, कॉस्ट फिर बढ़ गई। यस सर। तो फिर प्राइस डिसीजन फिर से चेंजेस नहीं करने पड़े होंगे उन्हें? हाँ सर। तो आप कैसे कह सकते हो कि ऐड बाद में सर पहले बनाया और ऐड बना लिया, बात सुनिए सर, तो ऐसे मैं पहले बोला उन्होंने नहीं, ऐड मुझे ये बना बात पता लिया। नहीं था। अरे नहीं सर, पहले ऐसे उन्होंने कंपनी ने ऐड बना लिया, उन्होंने सब मतलब सलमान खान वगैरह का भी सब कुछ लगा लिया, और लेकिन पास में लेकिन उन्होंने उस पे मतलब अपने रेट पे मतलब बाद में बनाया उन्होंने, तो मतलब जो पास के स्टोर है वहां पे तो प्रोडक्ट नहीं पहुंचा होगा ना। राइट, ओके। बिल्कुल, यहाँ पे एक चीज मैं आपको बता दूं, देखो अल्टीमेटली क्या होता है, जब आप अभी जैसा मैम आपको एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट पढ़ा रहे हैं, तो उसमें एक कॉन्सेप्ट का जिक्र आएगा 3rd यूनिट में, एड कॉपी। पढ़ाया मैम ने अभी तक? नो सर। एक होता है कॉन्सेप्ट ऐड कॉपी, जिसको हम बोलते हैं ऐड का ब्लूप्रिंट। कहने का मतलब है कि हम अपने प्रोडक्ट को कैसे एडवर्टाइज करने वाले हैं, उसका एक ड्राफ्ट, राइट, उसका एक रफ प्लान। तो जब मैं पहले ही रफ प्लान बना के रखता हूं, तो मेरे माइंड में ये चीज है कि मुझे सलमान खान से अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग करानी है, उससे ब्रांडिंग करानी है। तो बट ऑब्वियसली बात है, मुझे पता है कि इतना मुझे मास प्रोडक्शन करना है और सलमान खान को इतने पैसे देने पड़ेंगे, राइट। तो सलमान खान को दिए गए पैसे डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ बॉटल्स टू बी प्रोड्यूस्ड इन अ मास प्रोडक्शन, right, equals to the total cost to be applied on each particular unit। समझ में आती है कि सलमान खान को अगर मान लो 10 लाख रुपए देने पड़े, और मैं अभी पहला जो प्रोडक्शन करने वाला हूँ उस 50 रुपए वाली बॉटल का या उस पर्टिकुलर बॉटल का, वो कम से कम 1 लाख यूनिट रहेंगी, राइट। तो कहीं ना कहीं मुझे क्या करना पड़ेगा, 10 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख, टोटल कॉस्ट निकल के आ गई, 10 रुपए तो मेरे उसमें ही चले जाएंगे, राइट, उसकी कॉस्ट में। यानी कि पर बॉटल पे 10 रुपए वो लगे हुए जो सलमान खान ऐड दे रहा है उस चीज के हैं। बची रही 40 रुपए, जो 40 रुपए में से कंपनी डिसाइड करेगी ठीक है अब मुझे अपना कैसे प्रॉफिट निकालना है, और 40 रुपए में कोल्ड ड्रिंक बनके कैसे तैयार होगी, बॉटल्स में जाएगी और प्लस डिस्ट्रीब्यूशन तक पहुंचेगी। तो कहीं ना कहीं क्या करना पड़ेगा कंपनी को, पहले ही कुछ चीजों को, पूरी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज को ध्यान में रख करके उसकी प्राइसिंग करनी होगी। हो गया ना एक तरीके से, तो दूध में पानी ज्यादा डाल और क्या? अरे प्लानिंग का हो गया ना एक तरीके से। राइट, एग्जैक्टली, कि आपको सारी पूरी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी का एक प्लान देखते हुए, ड्राफ्ट देखते हुए, उसके बाद आप पूरी प्राइसिंग करोगे, राइट, और फिर ही बात आएगी कि हाँ अब आपको प्रोडक्ट फाइनली मार्केट में निकालना है। क्लियर है? या उसकी एडवर्टाइजिंग स्टार्ट करनी है। थर्ड कम सेल्स मैनेजमेंट। आप देखो आपका प्रोडक्ट मार्केट में है, कस्टमर को पता भी है उसके बारे में, सब चीजें हैं, लेकिन क्या है अल्टीमेटली उसको बेचने वाला बंदा मार्केट में नहीं है। ये ना तो आपने रिटेलर से कांटेक्ट किया, ना होलसेलर से कांटेक्ट किया, ना एजेंट से बात करी। तो क्या होगा अल्टीमेटली कि आपका कस्टमर जो है वो दुकान पे जाएगा, लेकिन उसको या तो प्रोडक्ट मिलेगा नहीं, और अगर मिलेगा तो ढंग से बताने वाला बंदा नहीं होगा, राइट। तो क्या होगा वहां पे कहीं ना कहीं सेल्स मैनेजमेंट का अपना रोल वहां पे अकर करता है। जो मैंने आपको बताया था कि सेल एक छोटा सा प्रोसेस है जो पूरे मार्केटिंग के प्रोसेस के बीच में अकर करेगा थोड़ी सी देर के लिए, जिसमें केवल प्रोडक्ट की ओनरशिप ट्रांसफर होगी। ये हमारा डिस्कशन हुआ था, राइट। तो उस ओनरशिप को ट्रांसफर करने के लिए कुछ लोग ऐसे जरूरत होंगे मुझे, जो कि मेरे उस सेल्स को फैसिलिटेट करेंगे, उसको कंप्लीट होने में मेरी मदद करेंगे, राइट। और वहां रोल आता है सेल्स मैनेजमेंट का। क्लियर है? जैसे मैं आपको बता दूं, जहां जहां देखो चैनल और डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर मैंने डिस्ट्रीब्यूशन बनाया है सेंटर, तो उनको भी तो मॉनिटर करने के लिए कोई होना चाहिए। तो उसी जगह पे लोग बन जाते हैं मार्केटिंग मैनेजर, असिस्टेंट मार्केटिंग मैनेजर, राइट, टेरिटरी हेड, यूनियन टेरिटरी हेड, एरिया सेल्स मैनेजर। ये जो प्रोफाइल आती है ASM, ZSM, ये सारी इसी बेसिस पर आती है,
क्लियर? कि पूरी मेरी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग अगर मेरा इतनी जगहों पे प्रोडक्ट पहुंचना है तो उसके लिए मेरे इतने बंदे पाइपलाइन में हैं जो इन सब चीजों की मॉनिटरिंग करते हैं। तो सेल्स मैनेजमेंट में भी मार्केटिंग मैनेजमेंट का रोल आ जाता है। और नेक्स्ट आता है यहाँ पे प्रमोशन। अब सिंपल सी चीज है कि अगर आपके प्रोडक्ट का पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्रमोशन होना है, एडवर्टाइजमेंट होना है, तो मार्केटिंग मैनेजमेंट का रोल है वहां पे। क्योंकि जब तक मार्केटिंग नहीं होगी तब तक आपको ये डिसाइड नहीं कर पाओगे आपकी प्रिंट मीडिया के थ्रू करूं मैं या डिजिटल मीडिया के थ्रू अपने पर्टिकुलर प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग करूं, ब्रांडिंग करूं। क्लियर? ओके। तीसरी चीज आ जाती है फाइनेंस। अब यहाँ पे आप देखो कि अगर आप एक प्रोडक्ट बनाना चाहते हो तो उसमें कुछ ना कुछ कॉस्ट इन्वॉल्व है। उस कॉस्ट के इन्वॉल्वमेंट में आपको ये डिसाइड करना है कि वो कॉस्ट कौन लगाने वाला है। मुझे लोन लेना पड़ेगा, मैं लगाऊंगा, या मुझे किसी दूसरे बंदे से मिल जाएगी कॉस्ट, या मुझे कोई इन्वेस्टर मिल सकता है इस चीज के लिए। क्लियर है? तो उसके लिए भी क्या करना पड़ता है। काफी बार आप देखो कि न्यूज़पेपर में एड्स आते हैं कि कंपनीज कॉल कर रही है फ्रेंचाइजी। उस दिन खुशी ने एक एग्जांपल लिया था। खुशी ने बोला था कि सर इस पर्टिकुलर कंपनी की मैंने फ्रेंचाइजी की बात करी, तो कहीं ना कहीं एडवर्टाइजमेंट करा होगा ना उन्होंने। जरूरी नहीं है कि खुशी को उसी को देख करके ये चीज दिमाग में आई, नॉर्मली भी आ सकती है कि ये प्रोडक्ट अच्छा चल रहा है मार्केट में, क्यों ना मैं इसकी फ्रेंचाइजी ले लूं। राइट? ओके। उसी तरीके से देखो, अभी मुझे लगता है कि थोड़े टाइम पहले बरेली में ये न्यूज स्प्रेड हुई थी कि कोई बंदा था जो बरेली में ऑडी की या फिर एप्पल की फ्रेंचाइजी लेना चाह रहा था। राइट? क्योंकि उन्होंने देखा ऑडी का अभी तक कोई शोरूम नहीं है बरेली में। राइट? लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक थोड़ा सा इडियोटिक डिसीजन रहता है, क्योंकि अभी तक इतनी ज्यादा डिमांड भी नहीं है बरेली में। आप शोरूम ओपन करके बैठ जाते, महीने में एक भी कस्टमर ऐसा नहीं आता जो जल्दी उसके बारे में इंक्वायर करने आए। या वो बात अलग हो सकती है, लोग 10 आ रहे हैं, केवल फोटो क्लिक करा रहे हैं, टेस्ट ड्राइव ले रहे हैं, चले जा रहे हैं। तो अगर आपको इसके लिए ऑडी का शोरूम खोलना है तो यू आर ऑलवेज तो देन तो इट इज ऑलवेज इजी फॉर यू, आप कभी भी स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन मुझे लगता नहीं कि कोई भी अपनी कॉस्ट इस चीजों के लिए इन्वॉल्व करेगा। एम आई क्लियर? फाइनेंस में एक चीज आपकी और आ जाती है। आजकल आप देखो, कभी भी इवेंट स्पेसिफिक मार्केटिंग की अगर आप बात करते हो तो क्या होता है, इवेंट स्पेसिफिक मार्केटिंग में आजकल लोग स्पॉन्सरशिप की बहुत बात करते हैं। स्पॉन्सरशिप का मतलब क्या होता है कि आपने कोई पर्टिकुलर इवेंट कराना है, उसके लिए आप फंड्स जो है दूसरे लोगों से जनरेट कर रहे हो। राइट? तो वहां पे भी कहीं ना कहीं मार्केटिंग मैनेजमेंट की एप्लीकेबिलिटी है कि मैं कैसे अपने पर्टिकुलर इवेंट की ब्रांडिंग करूंगा कि लोग उसमें इंटरेस्ट लेंगे और उसके लिए पैसा देने के लिए रेडी हो जाएंगे। क्लियर? इट साउंड्स वेरी इजी कि मैं एक काम करूंगा, 1 लाख रुपए का एक इवेंट करा लूंगा, 1 लाख रुपए का बजट कलेक्ट करने के लिए मैं 10 ऐसे लोगों से बात करूंगा जो मुझे रुपए देने के लिए तैयार हो जाएंगे, और टोटल मिला के मेरे पास 1 लाख रुपए हो जाएगा, मैं इवेंट करा दूंगा। लेकिन वो 10 लोगों को ढूंढना और उनको समझाना, कन्विंस कर पाना, प्लस जो मार्केटिंग का सबसे बड़ा चैलेंज है, जब आप मार्केटिंग में जो छोटा सा एक पोर्शन आता है सेल्स, उस सेल्स का सबसे बड़ा चैलेंज है दूसरे की पॉकेट में रखे हुए पैसे को अपनी पॉकेट में लेकर आना। आप क्या ऐसा खेल खेलने वाले हो, क्या ऐसा प्रोडक्ट उसको बेचने वाले हो कि कैसे उसकी जेब में रखा हुआ पैसा आप तक आ जाएगा, वही सेल्स है। राइट? ये सब तो बहुत बुकिश एक लैंग्वेज है, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, कि मैं अपने पर्टिकुलर प्रोडक्ट की ओनरशिप अपनी जगह से आपको ट्रांसफर कर रहा हूँ। वो बातें तो बहुत सिंपल सी हैं, सबको समझ में आती है कि हाँ ओनरशिप चेंज हो जाएगी। लेकिन मुद्दे की बात अगर की जाए तो मार्केटिंग और सेल्स केवल इतनी बात कहती है, दूसरे की जेब में रखे पैसे मेरे पास कैसे आएंगे। समझ में आती है? और मार्केटिंग का यहाँ पे नाम जुड़ गया है तो बस एक चीज क्लियर हो गई, वो है एथिकली, कि वो रुपए मेरे तक एथिकली कैसे आएंगे, कि मैं एक सर्विस देकर के कैसे उस पैसों को कमा सकता हूँ। Am I clear? एंड लास्ट है आफ्टर सेल सर्विसेज। मार्केटिंग में आजकल एक टर्मिनोलॉजी जुड़ गई है, दैट इज सीआरएम। राइट? अभी मैं कॉन्सेप्ट का जिक्र करूंगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा आज के टॉपिक में कि कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो जो एक कॉन्सेप्ट है वो है होलिस्टिक मार्केटिंग का, जिसमें इंक्लूड होता है कस्टमर का ओवरऑल सेटिस्फेक्शन। कस्टमर का ओवरऑल सेटिस्फेक्शन कैसे जनरेट होगा? वो जनरेट होता है कि किसी कस्टमर को आप कितनी इफेक्टिव सर्विसेज देते हो पोस्ट सेल। देखो अल्टीमेटली क्या होता है पोस्ट सेल, मैंने यहाँ पे वर्ड क्यों बोला, प्री सेल सब देते हैं, सब कहते हैं कि हाँ ठीक है, जब तक सेल नहीं हुई तब सब आप लोगों से वादे करेंगे, हाँ ठीक है सर इसकी सर्विस बहुत अच्छी है, आप कभी भी संभलवाने आओगे ये प्रोडक्ट बहुत जल्दी संभल जाएगा, इसकी ये वारंटी है, ये गारंटी है, तमाम चीजें होती हैं। लेकिन एक बार आप प्रोडक्ट ले आओ उनकी दुकान से और उसके बाद आप वापस लेकर के जाइए उनके पास सर्विस के लिए, तब पता लगेगी असली रियलिटी क्या है वहां पे। राइट? तब रियलिटी विल कम इन फ्रंट ऑफ यू। और तब अगर आपको लग रहा है कि तब भी बहुत अच्छी सर्विसेज मिल रही हैं, तो क्या होता है जनरली आपका कंपनी के संग रिलेशनशिप प्लस आपका ट्रस्ट कंपनी में बढ़ जाता है ना? जैसे आजकल कंपनी, किसी भी कंपनी का मोबाइल फोन आप परचेज करने चले जाइए, हर बंदा ये कह रहा होता है कि सर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, सर आपको अच्छी सर्विस मिलेगी, पार्ट्स आपके पास आपको आपके मोबाइल फोन के पार्ट्स भी बहुत जल्दी मिल जाएंगे, कोई ऐसी प्रॉब्लम आनी नहीं है। राइट? अच्छा,
सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सैमसंग का फोन मैं यूज करता आया हूँ और मुझे पता है कि जब एक्सेस डेटा होता है तुरंत फोन हैंग करने लग जाता है सैमसंग का, राइट। अभी मैं थोड़े दिनों पहले अपने लिए एक फोन देखने गया था, अगेन मेरा मन यही था कि मैं सैमसंग का ही परचेज करूं, पता नहीं क्यों हैंग होने वाली प्रॉब्लम मुझे पता है, उसके बावजूद भी फिर भी आई वाज नॉट एबल टू बिल्ड अ ट्रस्ट ओवर नो वीवो, ओप्पो एंड ऑल सच फोन्स। तो मैंने तब भी सैमसंग को ही पिक किया और मैंने उस बंदे से एक ही बात पूछी, ये फोन हैंग तो नहीं करेगा? मुझे अंदर से मालूम है फोन हैंग करने वाला है, मैंने फिर भी उस बंदे से यही बात पूछी कि ये फोन हैंग तो नहीं करेगा? एंड द पर्सन वाज सेइंग नहीं नहीं सर, सैमसंग में से पहले एक जमाना था जिसमें हमें हैंग की प्रॉब्लम आया करती थी, अब तो सर सैमसंग ने वो चीजें बदल दी हैं, अब सैमसंग के फोन में कोई हैंग नहीं होता। मैं लिटरली एक चीज कह सकता हूँ, अगर मैं खरीद भी लूंगा मुझे पता है 6 महीने बाद प्रॉब्लम वही आनी है। तो दिक्कत क्या है, लोगों को भी पता है कि जो बंदा खरीद रहा है फोन वो मुश्किल से 1 साल चलाएगा, 1 साल से ज्यादा चलाएगा ही नहीं। आज की डेट में फोन की वैलिडिटी या फोन की लाइफ साइकिल कितनी रह गई है? 1 साल। आज खरीदते हो आप 15,000 का फोन खरीद लो, 25 का खरीद लो, 35 का खरीद लो, या 1 लाख का खरीद लो, राइट। आप आईफोन एप्पल आईफोन 10 खरीद लो आप, और 1 लाख का फोन होगा, उसके बाद भी आप घर पे लेके आने के बाद आप आपका मन जो है 1 साल के अंदर बदल जाएगा, क्योंकि एप्पल कुछ और ले आएगा, है ना। अच्छा, सबसे बड़ी दिक्कत क्या है इन कंपनीज के साथ, ये अपने ही प्रोडक्ट का दूसरा कॉम्पिटिटिव वर्जन लेके आती हैं और कस्टमर फिर इसी वजह से फ्रस्ट्रेटेड फील करता है कि मैंने इनकी कंपनी का सबसे अच्छा वर्जन लिया था, अब ये एक और नया ले आए, तभी तो पैसा कमाती हैं, उसी वजह से पैसा कमा रही हैं। तो अल्टीमेटली ये जो पर्टिकुलर चीज है ये क्या कहलाती है? कॉम्पिटिटिव प्राइस, जो एक ब्रांडिंग करी है ना उन्होंने कि अपने प्रोडक्ट से दूसरा बेहतर प्रोडक्ट लेकर के आए, राइट। और ये चीज आपको फेयर एंड लवली वाली कंपनी में तो बहुत मिलेगा, फेयर एंड लवली प्लस, फेयर एंड लवली एचडी ग्लो, फेयर एंड लवली नो ओ प्लस, पता नहीं क्या क्या, पता नहीं कौन कौन सी आती है, राइट। तो ये एक टर्मिनोलॉजी है। यहाँ पे मैं एक चीज का जिक्र करूंगा, वो है कैनिबलाइजेशन। एक शब्द मैंने यूज किया, दोबारा से बता देता हूँ, कैनिबलाइजेशन। ये कैनिबलाइजेशन वर्ड आपको बहुत बार सुनने को मिल जाएगा जब आप डिस्कवरी देखोगे तब, राइट। डिस्कवरी में आपको दिखाते हैं कैनिबलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि कुछ स्पेशीज क्या करते हैं, वो अपने ही पर्टिकुलर जो उनका बर्ड चाइल्ड होता है वो उसी को खा लेते हैं। The snake. ऐसे होते हैं लोग, राइट, ऐसी कैटेगरी के एनिमल होते हैं। तो अल्टीमेटली वहां से निकल के आया मार्केटिंग मैनेजमेंट में कैनिबलाइजेशन, मतलब एक ही कंपनी अपने 2 प्रोडक्ट लेकर के आती है और एक प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग एक समय के बाद इतनी कर देगी कि वही प्रोडक्ट दूसरी प्रोडक्ट की सेल को कम कर देगा। कैनिबलाइजेशन। सर इसको एक ही ऐसे भी कह सकते हैं, कंपनी अपने मतलब अपने अलावा किसी और को अपना कॉम्पिटेंट मानती ही नहीं है, उसे केवल ये भी अपने हो आप को सकता हर बार है। बीट देखो करना है। अल्टीमेटली एक कोटेशन आपने सुनी होगी, लाइक यू फॉर योरसेल्फ इज ओनली द कॉम्पिटिटर, व्हाट यू हैव डेवलप्ड सो फार इन अ डे, आपको कल उससे ज्यादा बेहतर करना है। तो कंपनीज इसलिए भी वाला काम करती हैं। क्लियर है ये चीज? वो अपने हर बार अपने पुराने वर्जन को मतलब हराने के लिए अपग्रेड हर बार करते रहते हैं, कहीं ना कहीं कुछ समय के बाद उसमें बदलाव लाते रहते हैं। अच्छा, अभी मुझे आप लोगों को मुझे याद आ रहा है कि जिस समय मुझे बताया गया था कि मुझे सेमेस्टर भी मार्केटिंग मैनेजमेंट पढ़ाना है स्टूडेंट्स को, तब से मेरा माइंड फिर उसी सब चीजों की तरफ रिवॉल्व करने लग गया था कि कौन कौन सी जगहों पे मुझे केस स्टडी दिख रही है मार्केट में। तो मैं जब अपने घर से निकल करके हेड ऑफिस आता हूँ तो एक जगह पे बोर्ड लगा हुआ है, फेयर एंड लवली बन गया है ग्लो एंड लवली। तो केस स्टडी अपने आप में क्यों बन गया, क्यों फेयर एंड लवली का नाम बदल करके ग्लो एंड लवली रख दिया गया? तो मैं आपको बता दूं इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा रीजन है। कंपनी पे बीच में अभी एक केस हो गया था इसी चीज को लेकर के कि आप बार बार फेयर कह करके जिन लोगों का डार्क कॉम्प्लेक्शन है उनको इंफीरियर महसूस कराते हो सोसाइटी में। इसलिए आप किसी भी कीमत पे अपने एडवर्टाइजमेंट में ये फेयर शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो मात्र केवल कंपनी की इमेज अभी ऐसे मोड़ पे आ चुकी है। लोग सर बहस पे लगाने ग्लो कहां से मारेंगे? अब जिन पे ग्लो नहीं है ऐसे तो ग्लो वाले भी तो वो कर सकते हैं, केस कर सकते हैं कि भाई जिन पे ग्लो नहीं आता आप है। देखो अभी समझने की कोशिश करना, मैं दोबारा एक बार चीज पहले पूरा एग्जांपल सुनिए, आपको क्लियर हो जाएगा। कंपनी को क्या बताया गया कि कंपनी को ये पर्टिकुलर वर्ड इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि इस वर्ड से सोसाइटी में ऐसे लोग जिनका कॉम्प्लेक्शन थोड़ा भी डार्क है उनको इंफीरियर महसूस होता है, राइट। तो कंपनी को ये बताया गया कि आप अपनी इमेज किसी भी तरीके से चेंज करिए, और उसमें कंपनी को बोला गया कि अभी आप एक देखो एक टर्म आती है, अभी ब्रांडिंग का नाम यूज किया था मैंने, तो एक टर्म होती है रीपोजिशनिंग, मतलब आपकी इमेज जो बन चुकी है मार्केट में अब आपको उसको चेंज करना है, और चेंज करने के लिए आपको एडवर्टाइजमेंट करने पड़ेंगे। तो अभी वो उस मोड़ पे है, इसलिए वो बार बार कुछ कुछ जगहों पे लिख रहे हैं फेयर एंड लवली अब बन गया है ग्लो एंड लवली। अगर वो ऐसे नहीं बताएंगे तो किसी को समझ में नहीं आएगा कि अब ग्लो एंड लवली ये नई क्रीम कौन सी है। वो कहेंगे फेयर एंड लवली खत्म हो गई, यानी कि मार्केट से चली गई। कि अब अगर ऐसे ब्रांडिंग नहीं करेंगे तो लोगों को समझ में नहीं आएगा, ठीक है फेयर एंड लवली नहीं आती है, अब फेयर एंड लवली की जगह ग्लो एंड लवली नाम से आती है। क्लियर है? उसी तरीके से जो पहले मेल्स के लिए आती थी फेयर एंड हैंडसम, उसका नाम भी चेंज हो गया, ग्लो एंड हैंडसम हो गया।
उसका ऐड भी देखा होगा आपने टीवी पे। तो आप लोगों के जहन में ये वाली बात नहीं है क्यों ये फेयर एंड लवली से आप नाम बदल के ग्लो एंड लवली कर रहे हैं या फेयर एंड हैंडसम से बदल के ग्लो एंड हैंडसम कर रहे हैं। अब जो दूसरी चीज मनोहर ने यहाँ पे बोली कि सर ऐसे तो ग्लो के केस में भी फिर लोग यही बातें करेंगे, तो मैं आपको बता दूं ग्लो का मतलब केवल इतना सा है, जैसे डव का एग्जाम्पल है ना, डव जो सोप है, डव एक कैंपेन लेके आया था डार्क इज न्यू ब्यूटीफुल। डव ने कैंपेन स्टार्ट करा था फेयर एंड लवली को इसी तरीके से, ऐसे ही सोप को टारगेट करते हुए, जो बार बार अच्छे निखार की बात करते हैं ना या साफ चेहरे की बात करते हैं, उसी को टारगेट करते हुए डव ने कहा डार्क इज न्यू ब्यूटीफुल। उन्होंने उसी सेगमेंट को पकड़ लिया, उन्होंने कहा सब गोरों को बेच रहे हैं, हम उन लोगों को बेचेंगे जिनका कॉम्प्लेक्शन थोड़ा भी डार्क है। तो उन्होंने उनके लिए कैंपेन लेकर के आए कि डार्क इज न्यू ब्यूटीफुल। उन्होंने एक नई सोच डेवलप करी सोसाइटी में कि अगर आपका कॉम्प्लेक्शन डार्क भी है, यू आर स्टिल ब्यूटीफुल, यू आर स्टिल बोल्ड एंड कॉन्फिडेंट, राइट। और उस बेसिस पे उन्होंने डव को सेल आउट करना शुरू करा। तो डव भी ग्लो की बात करता है कि चाहे आपकी स्किन फेयर हो या डार्क हो, उसमें दोनों में ही एक ग्लो की बात होती है कि हाउ यू कैरी योरसेल्फ, राइट। कितना इफेक्टिव आप अपने चेहरे को दिखा सकते हो, कितना इफेक्टिवली आप अपने आप को कैरी कर सकते हो, राइट। इसलिए वहां पे अब वो फेयर की जगह ग्लो वर्ड यूज होना स्टार्ट हो गया। मैं अगेन आप लोगों को बोल रहा हूँ, यहाँ पे अपने आप में एक पूरी की पूरी केस स्टडी है ये ब्रांड रिपोजिशनिंग के ऊपर, राइट। और इसको पढ़िएगा, सर्च करिएगा इंटरनेट पे कि ऐसा क्यों हुआ है, तब आपको इनके बारे में और भी फैक्ट्स पता लगेंगे। नोट डाउन कर लीजिए अपने पास कहीं पर कि आपको फेयर एंड लवली ग्लो एंड लवली क्यों बना या फेयर एंड हैंडसम ग्लो एंड हैंडसम क्यों बन गया, उसके पीछे के रीजंस निकाल के लेके आने। कुछ चीजें मैंने तो बता दी हैं, उस पर डिपेंडेंट मत रहिएगा, हो सकता है उससे भी बड़े बड़े रिजिड फैक्ट्स आपको पता लग जाए उस चीज के बारे में, क्योंकि अगर केस हुआ है तो उसके पीछे क्या चल रहा है। यस कृपा बताइए। सर जब से ये ओप्पो वीवो के फोन आए सब क्रीमें फेल हो गई है। This was nice. He is absolutely right. देखिए ओप्पो वीवो के फोन ने तो ये काम किया ही किया। मुझे लगता है जो सबसे बड़ी दिक्कत आई है वो है टेक्नोलॉजी के साथ, कि पहले टेक्नोलॉजी लेकर के आई 2 मेगापिक्सल कैमरा, फिर लेके आती है 4 मेगापिक्सल, फिर आती है 16 मेगापिक्सल, और आज की डेट में आ रहा है 42 मेगापिक्सल कैमरा। आई मीन आई लिटरली वांट टू नो कि आप एक इमेज में किस एक्सटेंट तक जाना चाहते हो, राइट। 42 मेगापिक्सल कैमरा मतलब हाई क्वालिटी एकदम, मतलब गधे को घोड़ा बनाना। कृपा के एग्जांपल बिल्कुल अलग लेवल के होते हैं एकदम, आप लोग सुनोगे तो आपको भी याद आएगा। बिल्कुल सर कंपनी में समझ गई आजकल वही चलता है जो समय के संग बदलता है, कभी बिल्कुल बदले सही बढ़िया अपने आप को, राइट। चलिए तो आई थिंक स्कोप ऑफ मार्केटिंग क्लियर हो गया सबको। Yes, sir. नाउ कमिंग ऑन टू द कोर कॉन्सेप्ट्स ऑफ मार्केटिंग। अगर आप इनको दोनों तरीके से पढ़ना चाहो तो दोनों तरीके से पढ़ सकते हो। इनको आप कॉन्सेप्ट्स भी बोलते हैं और फिलोसफीज ऑफ मार्केटिंग भी बोलते हैं। यहाँ पे मैं हेडिंग चेंज करूंगा, दीज आर नॉट कोर कॉन्सेप्ट्स, दीज आर कॉन्सेप्ट्स ओनली, क्योंकि कोर कॉन्सेप्ट्स अलग है मार्केटिंग के और कोर कॉन्सेप्ट्स अलग हैं, राइट। होल्ड अ सेकंड, मैंने इसलिए हेडिंग यहाँ पे चेंज कर दिया है, दीज आर कॉन्सेप्ट्स ऑफ मार्केटिंग और फिलोसफीज ऑफ मार्केटिंग। ओके, आप लोग में से कितने स्टूडेंट के पास 11th 12th में थी कॉमर्स? मेरे पास कुछ स्टूडेंट के पास 11th 12th में थी कॉमर्स, राइट। ओके, मेरे ख्याल से आप लोग में, अच्छा कोई मुझे बताइएगा एक बार कि आप लोगों में से कितने स्टूडेंट्स ने 6th क्लास से कॉमर्स पढ़ना स्टार्ट कर दी थी? 6th क्लास से। मैंने 9 से कर दी थी सर, यूपी बोर्ड में 9 से हो जाती है, 6 से नहीं थी। ठीक है, एनीवन एल्स? 11th 12th सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट आता है। हाँ राइट, ठीक है, ये तो छोटी छोटी चीजें हो गई, ये तो मतलब कुछ स्टार्टिंग में बताते हैं ये वाली चीजें। खैर ओके, मैं आपको बता दूं कि लाइक मैं भी यूपी बोर्ड से पढ़ा हुआ हूँ, तो अल्टीमेटली यूपी बोर्ड में मेरे टाइम पे तो 6 से कॉमर्स आ गई थी, स्टार्ट हो गई थी, राइट। आई वाज स्टडीइंग कि 6th 7th 8th में मैंने केवल एक ही चीज सीखी थी, वो थी जनरल एंट्री कैसे होती है। तीनों क्लास में एक ही चीज पढ़ाई गई कि जनरल एंट्री कैसे होती है। और मुझे आज भी याद है कि 9th क्लास में जब मुझे कॉमर्स लेनी थी, उससे पहले ही मेरे फादर ने मुझे सिखा दिया था कि फाइनल अकाउंट कैसे मिलाते हैं, उसी टाइम पे। एंड लिटरली जिस दिन मेरा पहला डे था और मेरे को फाइनल अकाउंट पढ़ाया गया, जितनी देर में टीचर ने क्वेश्चन लिखा था उतनी देर में मेरा बैलेंस शीट का टोटल टैली हो गया था दोनों साइड का, राइट। क्योंकि उतना अच्छे से उन्होंने मेरे को वो चीज सिखा रखी थी फाइनल अकाउंट के बैलेंस शीट का टोटली मैच नहीं होता, पता नहीं क्यों। तो कॉमर्स स्टूडेंट के लिए तो सबसे बड़ी खुशी की बात ये होती है कि बैलेंस शीट का टोटल एक ही बार में आ जाए। मैं तो सर खुद मैच कर देता हूँ।
क्या हाँ, करूँ वो होता ही नहीं। सस्पेंस डाल करके। हाँ, नहीं मतलब बिना सस्पेंस के लिख देता हूँ। तो बिना सस्पेंस के। हाँ, दोनों साइड का एसेट्स वाला लायबिलिटीज में डाल देता हूँ, जो ज्यादा बढ़िया लग रहा होता है, चलो बढ़िया है, ये तो बहुत अच्छी बात सिचुएशन है। में सूट करता है जो वही लिख तो देता मैं हूँ। आप लोग बता दूं कि जो स्टूडेंट ऐसे हैं जो स्टार्टिंग से पढ़ के आए हैं, उन्होंने हिंदी में इस चीज को पढ़ा होगा, तो एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा आप लोगों ने, वस्तु विनिमय, या इंग्लिश में जिन लोगों ने पढ़ा होगा उन्होंने पढ़ा होगा बार्टर सिस्टम। Yes, sir. Yes, पढ़ा है sir. ना बार्टर सिस्टम? Yes, sir. राइट, चीज के बदले So- चीज। Sir, Right, commodity exactly. to commodity. बिल्कुल राइट, अरे कमोडिटी इन बोल प्लेस रहे ऑफ हो। कमोडिटी, प्रोडक्ट इन प्लेस ऑफ प्रोडक्ट, लाइक हाउएवर यू वुड लाइक टू से दिस। बात एक ही है कि एक चीज के बदले आपको दूसरी चीज मिल जाएगी। ये वो दौर था जिस समय पे एक्चुअली पैसे का इन्वॉल्वमेंट या फिर यानी कि मॉनेटरी टर्म्स का इतना ज्यादा इवोल्यूशन नहीं हुआ था। तो लोगों ने क्या तरीका निकाला कि अगर कोई भी चीज चाहिए तो एक चीज के बदले दूसरी चीज आपको मिल सकती है। क्लियर है इतनी चीज? एक सेकंड होल्ड करिएगा प्लीज। Okay, fine. Yes. Am I now audible? Yes, sir. Yes, sir. Fine. So ultimately जिस समय पे मॉनेटरी टर्म्स का इतना ज्यादा इवोल्यूशन नहीं था, लोग क्या करते थे, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बदले में दूसरा प्रोडक्ट ले लेते थे, राइट? तो ये वो टाइम था जिस समय में मार्केटिंग इस तरह से शुरू हुई कि ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट में एक पहला कॉन्सेप्ट आ गया, एक्सचेंज कॉन्सेप्ट, राइट? लोग चीजों की वैल्यू को दूसरी चीजों की वैल्यू के कंपैरिजन में देखते थे और उसी हिसाब से डिसाइड करते थे कि मैं किस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बदले में कौन सा प्रोडक्ट आपको दे सकता हूँ, राइट? जब भी आपने वो चैप्टर पढ़ा होगा तो उस चैप्टर में ये वाली प्रॉब्लम्स बहुत डिफाइन की गई थी कि क्यों बाद में मॉनेटरी टर्म्स की रिक्वायरमेंट सबसे ज्यादा पड़ गई, क्योंकि एक प्रोडक्ट के बदले में दूसरे प्रोडक्ट को जो मेजर करने की बात थी वो बड़ी टिपिकल हो रही थी, राइट? फॉर एग्जाम्पल किसी को चाहिए था 1 kg फ्लोर और दूसरी साइड किसी के पास नो ही इज हैविंग अ काउ, और दोनों चीजों को एक्सचेंज करने का समझ में नहीं आता था मेजरमेंट कैसे होगा, राइट? 1 किलो आटे के लिए आप एक गाय को कैसे तोल सकते हो भाई, है ना? क्लियर है ये सर चीज? ये तो भी कहीं ना था कहीं कि वहीं से मॉनेटरी जैसे टर्म्स चलो का तोलने इवोल्यूशन वाली हो गया बात था। है सर, ऐसे तोलने वाली बात है, ये भी तो था कि जैसे हमें तुम्हारे पास जो चीज है हमें चाहिए ही नहीं, हमारे किसी काम की नहीं है। एग्जैक्टली राइट, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। भाई तो यहाँ जैसे पे सुनार आदमी है वो गाय का क्या करेगा, उसे तो सोना चाहिए ना। बिल्कुल एग्जैक्टली राइट, सही कह रहे हो बिल्कुल मनोहर, आपने बिल्कुल सही एग्जांपल कोट किया है यहाँ पे। तो क्या चीज क्लियर होती है कि सबसे पहले जो स्टार्टिंग हो गई थी वो हो गई थी एक्सचेंज कॉन्सेप्ट से। लोग दिखाते थे कि मेरे पास जो चीज है वो सबसे ज्यादा वैल्यूएबल है, तो ये जो तरीका था कि मेरे पास जो चीज रखी हुई है तो अगर मैं आपको दूंगा वो ज्यादा वैल्यूएबल है, इसलिए मुझे आपके कंपैरिजन में ज्यादा चीज आपसे चाहिए। तो वो भी तो अपने आप में एक मार्केटिंग ही थी ना, कि आप अपने पास अवेलेबल प्रोडक्ट को ज्यादा वैल्यूएबल दिखा रहे हो, और उसको दिखाने के लिए भी जिस तरह से आप दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हो, दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ मार्केटिंग कम्युनिकेशन ओनली, राइट? ओके, इसका मतलब इंडिया में भी पहले से ही लोग टोपी पहनाते थे। राइट, कैन से दैट। ओके, तो वो एरा जैसी फिनिश हुआ, उसके बाद जैसी मॉनेटरी टर्म्स की बात आई, फिर बात आ गई प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट की। लोगों ने कहा कि ठीक है, अब अगर ऐसी बात है तो सीधे कॉन्सेप्ट आ गया है, मनी मार्केट में मनी अवेलेबल है तो इतने पर्टिकुलर अमाउंट में आपको ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट मिल जाएगा। लेकिन लोगों ने क्या कहा कि उसके लिए मार्केट में पहले प्रोडक्ट का होना जरूरी है, और अगर कंटिन्यूअस आपको प्रोडक्ट अवेलेबल कराना है तो उसके लिए कंटिन्यूअस क्या चीजें होना जरूरी है, कंटिन्यूअस प्रोडक्शन होना जरूरी है। प्रोडक्ट की क्वालिटी वाज नॉट अ प्राइम फोकस, मैं दोबारा रिपीट करूंगा, प्रोडक्ट की क्वालिटी वाज नॉट अ प्राइम फोकस। व्हाट वाज द प्राइम फोकस? द प्रोडक्शन, द मास प्रोडक्शन, द कंटिन्यूअस प्रोडक्शन, और 24/7 into 365 प्रोडक्शन। अभी आपको याद होगा थोड़े दिनों पहले मैंने ये वाली बात पे एग्जांपल दिया था किसी इंडस्ट्री का, कौन सी कंपनी थी वो? पार्ले जी। राइट, पार्ले जी का मैंने एग्जांपल दिया कि प्रोसेस लेआउट है और कंटिन्यूअस प्रोडक्शन होता है। खैर जो सिनेरियो है वो बहुत चेंज हो चुका है, आज की डेट में वो प्रोसेस लेआउट का इस्तेमाल बिल्कुल क्वालिटी को मेंटेन करते हुए करते हैं, बट कॉन्सेप्ट एक्सचेंज के जज्बात आ गया था कि प्रोडक्शन पे फोकस था। सबसे ज्यादा कंपनीज किस चीज में लग गई थी कि बस प्रोडक्शन करिए आप कंटिन्यूअस, और ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन होगा तो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन के बाद प्रोडक्ट जो है हमारे पास रहेगा और हम मार्केट में अवेलेबल करा पाएंगे। क्लियर है ये चीज? ओके, द थर्ड कम्स, अब अल्टीमेटली क्या हुआ, काफी सारे के सारे मार्केटर जो थे केवल प्रोडक्शन पे फोकस करने लग गए, प्रोडक्ट बनाने लग गए। अब मार्केट में प्रोडक्ट जा भी रहा था, लोगों को मिल भी रहा था, लेकिन उससे एक दिक्कत क्रिएट ये होने लगी कि जब लोगों के पास वो प्रोडक्ट पहुंचता था तो लोग कहने लग जाते थे कि भाई जो इसकी क्वालिटी है वो इतनी सुपीरियर नहीं है,
राइट, कहीं ना कहीं इसमें ये कमी है या दूसरी कोई कमी आ गई है, उसकी वजह से जब ऐसे फीडबैक्स हमें रिसीव होना स्टार्ट हो गए तो मार्केटर्स का जो फोकस था वो शिफ्ट हो गया फ्रॉम प्रोडक्शन टू प्रोडक्ट। यानी कि जो एरा था अब वो एक्सचेंज से बदल करके प्रोडक्शन में और प्रोडक्शन से बदल करके हो गया प्रोडक्ट पर। यानी कि अब अगर कंटिन्यूअस प्रोडक्शन कराना भी है तो मुझे इस चीज को फोकस करते हुए कराना है कि मेरी जो प्रोडक्ट की फाइनल क्वालिटी निकलेगी वो इफेक्टिव होगी। मैं उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बाहर नहीं भेजूंगा अपने कंपनी के आउटलेट से या फैक्ट्री से जो कि प्रोडक्ट क्वालिटी के टर्म्स में इफेक्टिव नहीं होगा। ये वो समय था जब मार्केटिंग मैनेजमेंट के होते हुए अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन मार्केट में आए जिनका नाम है ISO, राइट, इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन। क्या करते हैं वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, क्या करते हैं ये लोग क्वालिटी के पैरामीटर्स बनाते हैं कि इन चीजों, अगर आपका प्रोडक्ट इस पर्टिकुलर कैटेगरी में आता है तो उसके अकॉर्डिंग आपको एटलीस्ट इतने क्वालिटी पैरामीटर्स को फॉलो करना पड़ेगा, तभी आपका प्रोडक्ट जो है वो इफेक्टिव माना जाएगा। इतनी चीज क्लियर है, राइट? तभी से ये क्वालिटी मॉनिटरिंग जो टर्म्स थे या पैरामीटर्स थे ये मार्केट में आए। इतनी बात समझ में आती है? Yes, sir. ओके, Yes, sir. अब नेक्स्ट कम्स, अब अल्टीमेटली क्या हुआ, जब प्रोडक्ट इफेक्टिव बनाने पे बात आ गई कि प्रोडक्ट बहुत सबसे ज्यादा सुपर क्वालिटी का होना चाहिए तभी कस्टमर खरीदेगा, तो क्या होने लगा, मार्केट में जो प्रोडक्ट की पहले अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा हुआ करती थी अब वो उससे कम हो गई। क्यों हो गई कम? क्योंकि कंपनी जो ऐसा प्रोडक्ट है जो कि इंफीरियर है क्वालिटी में उसको नहीं भेजती थी मार्केट में, केवल अच्छी क्वालिटी का ही प्रोडक्ट भेजना चाहते थे। तो देखो, आप क्वालिटी कब मेंटेन कर सकते हो? जब कम बनाओगे पर अच्छा बनाओगे, राइट? ज्यादा बना करके अच्छा बनाने की कोशिश करोगे तो चीजें खराब ही हो जाएंगी। तो चीजों की जो पर्टिकुलर सप्लाई थी मार्केट में कम हो गई, राइट? अब मार्केट में जब सप्लाई भी कम है लेकिन कस्टमर भी बहुत ज्यादा है और लेकिन डिमांड फ्लक्चुएट हो रही है अपने आप में ही, कभी है मार्केट में पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड, कभी नहीं है, तो कहीं ना कहीं उस कस्टमर को ढूंढ करके भी वो प्रोडक्ट बेचना भी अब मुश्किल होने लगा है। ये वो एरा आ गया। तो फोकस जो शिफ्ट हुआ वो हुआ कि अब ठीक है, एक्सचेंज की बात हो गई, प्रोडक्शन की बात हो गई, प्रोडक्ट की बात हो गई, ये वो एक्टिविटीज हो गई जो अब सेकेंडरी बनती गई। सेकेंडरी बनती गई मतलब इन पे फोकस तो किया जाना ही है, लेकिन अब प्राइम फोकस ये आ रहा है कि कंपनी पैसा इसलिए कमा नहीं पा रही क्योंकि कस्टमर खरीदना ही नहीं चाह रहा है। तो सेल बिकेम द टारगेट कि प्रोडक्ट की सेल कैसे हो, राइट? और प्रोडक्ट की सेल कराने के लिए सेलिंग कॉन्सेप्ट मार्केट में आया, दैट यूज एनी सॉर्ट ऑफ स्ट्रेटजी दैट कैन हेल्प यू सेल योर प्रोडक्ट, राइट? तभी से वो कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो गया मार्केट में कि सेलिंग का मतलब है कि गंजे को कंघी बेचना, राइट? वही दौर था जहां से मार्केटिंग इस तरह की स्टार्ट हो गई कि मार्केटिंग का मतलब ही यही है कि आपको गंजे को कंघी बेचनी है, मतलब जिसकी डिमांड ही ना हो उसको प्रोडक्ट बेच दो। गंजा कंघी यूज नहीं कर सकता क्या? नहीं, बिल्कुल कर सकता है। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि एक जो पर्टिकुलर बात है कि उसी बेसिस पे उसकी ये मर्जी कहावत कहीं यहाँ के पे आई बाल है कि जिसकी डिमांड नहीं है उसके बावजूद भी आप उसे प्रोडक्ट बेच के आ जाते हो, राइट? वो सेलिंग कॉन्सेप्ट आ गया कि आप कोई भी स्ट्रैटेजी यूज करो बट आपका प्रोडक्ट बिकना चाहिए। क्लियर? अगेन, लेकिन क्योंकि मैं दोबारा से मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, ये ना तो केवल कॉन्सेप्ट्स हैं बल्कि इनको फिलॉसफीज भी बोला जा सकता है, और तीसरी चीज इनको जो बोला जा सकता है वो है पैराडिम शिफ्ट, राइट? शिफ्ट आना कि कैसे कैसे मार्केटिंग में जो सिनेरियो है, जो एरा रहा है वो बदलता आया है, राइट? आज आपके सामने अभी आप देख सकते हो 7 कॉन्सेप्ट तो आपके सामने लिखे हुए हैं, राइट? और मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स में 8वां कॉन्सेप्ट वो है जो मैं अभी MBA में पढ़ा रहा हूं एज अ सब्जेक्ट। क्लियर? तो सेलिंग कॉन्सेप्ट के बाद नेक्स्ट क्या आ गया? मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। लोगों को और मार्केटर को ये चीज समझ में आने लगी थी कि आप प्रोडक्ट भले ही बेच दो कस्टमर को, जिसकी डिमांड ना हो उसको भी बेच दो, लेकिन अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है ना तो एक ही बार कर सकते हो ये वाला काम, दोबारा वो आपकी बातों में नहीं आएगा। सर ये बताओ, तो कहने का मतलब क्या है? कॉलेज खुल रहे हैं कि नहीं खुल रहे हैं? I'll talk about this later. नहीं, पता क्या बात है सर, जब मन होता है ना पढ़ने का तब ऐसा लगता है कि प्रमोट तो हो ही जाना, छोड़ो। That is up to you. That can be decided later also. Okay? So coming on to the marketing concept, मैंने क्या बताया आपको यहाँ पे, जिस समय ये चीज क्लियर हो जाती है कि ठीक है कस्टमर एक बार तो प्रोडक्ट खरीद लेगा डिमांड ना होते हुए भी, लेकिन अगर वो प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड नहीं है तो वो दोबारा वो प्रोडक्ट खरीदने नहीं आएगा। तो जो फोकस था धीरे धीरे करके शिफ्ट होने लगा सेलिंग से कस्टमर सेटिस्फेक्शन की ओर, और वहीं से मार्केटर को ये बात भी समझने आने लग गई कि अगर हम चीज ही वो बनाएंगे जो कस्टमर की नीड है, कस्टमर की वांट है, कस्टमर की डिमांड है, तो ऑटोमेटिकली कस्टमर सेटिस्फाइड भी होगा और हमारा प्रोडक्ट बिकेगा भी। तो हमें सेलिंग पे इतना ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि चाहे हमें कोई भी हाथ पैर मारना पड़े प्रोडक्ट बिके, नहीं। आप बात ही सीधे वो करो ना जो कस्टमर को चाहिए,
तो वहां से मार्केटिंग कॉन्सेप्ट आया कि ठीक है, कस्टमर जिस चीज को चाहता है आप वो चीज बनाइए और वही चीज मार्केट में सेल आउट करिए, उसी चीज का प्रोडक्शन होगा, उसी चीज की प्रोडक्ट क्वालिटी पे बात की जाएगी। ठीक, नेक्स्ट के समय के साथ जो अल्टीमेटली कस्टमर है उसकी जो वैल्यू है मार्केट में वो बढ़ती गई हमेशा। और उस दिन मैंने आप लोग को एग्जांपल दिया था द कस्टमर इज काइंड ऑफ अ गॉड टू अस, राइट। तो लोगों ने क्या कहा कि मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में ना केवल कस्टमर सेटिस्फेक्शन को बल्कि कस्टमर डिलाइट को, कस्टमर वेलफेयर को भी ध्यान में रखना स्टार्ट कर दिया, राइट। आजकल आप देखो कि काफी सारी कंपनीज ऐसी भी हैं जो अपने एनिवर्सरीज पर, मतलब 10 ईयर एनिवर्सरी हो गई, मान लो किसी कंपनी को 10 साल पूरे हो गए, आजकल एक ऐड आ रहा है बंधन बैंक को 5 साल पूरे हो गए। किसी ने देखा है वो ऐड? किसी ने ऐड देखा ये वाला, बंधन बैंक को 5 साल कंप्लीट हो गए? नो वन, ऑल राइट, नो प्रॉब्लम। आप ऐड सर्च करके देख लीजिएगा, यूट्यूब पे अवेलेबल होगा मुझे लगता है ये ऐड, कि बंधन बैंक को 5 साल पूरे हो गए। तो बंधन बैंक अलग अलग जगह दिखा रहा है कि इस बार हम अपना जन्मदिन नहीं मनाएंगे, हम लोगों को सेवाएं प्रदान करेंगे और अच्छी। क्लियर है? तो उन्होंने क्या करने की कोशिश करी, वो लोगों को दिखा रहे हैं सोसाइटल कॉन्सेप्ट कि कस्टमर हैज बिकम मोर इंपॉर्टेंट टू अस। हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में जब भी कोई ग्रोथ होगी तो उसका कुछ ना कुछ हम शेयर या फिर कुछ ना कुछ से जुड़ा हुआ कस्टमर को देंगे, राइट। जब आप शेयर पढ़ते हो, कंपनी अकाउंट्स पढ़ रहे हो ना आप? यस सर। कंपनी अकाउंट्स में कंपनी बैलेंस शीट बनाना सीखोगे अभी आप, राइट। और उसमें एक चैप्टर है शेयर का, रितेश सर पढ़ाएंगे आपको। तो रितेश सर आपको पढ़ा ही रहे हैं ऑलरेडी, मैं देख रहा हूँ। तो उसमें शेयर की जब बात आएगी तो शेयर का एक नाम आएगा, शेयर का बोनस शेयर, राइट। बोनस शेयर क्या होते हैं? जब कंपनी का जो प्रॉफिट है जब एक अच्छी खासी लिमिट पे पहुंच जाता है तो कंपनी क्या करती है, कुछ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ प्रॉफिट के डिवाइड करके शेयर्स डिस्ट्रीब्यूट कर देती है लोगों को एज अ बोनस शेयर, राइट। और आपकी टोटल क्वांटिटी ऑफ शेयर जो है वो बढ़ जाती है और उससे फायदा ये आपको मिलता है कि आपको बिना कुछ करे आपकी शेयर क्वांटिटी बढ़ गई, तो जब आप उसको बेचोगे तो अल्टीमेट आपका फायदा जो है वो उस पर्टिकुलर प्रपोर्शनेट से बढ़ जाएगा। क्लियर है? तो कंपनी ये क्यों सोच रही है, कंपनी को क्या पड़ी है अपने जो कस्टमर है, जो कि शेयर होल्डर्स हैं, उनको अलग से बोनस शेयर बांटने की, क्योंकि कंपनी जानती है कि जितना ज्यादा मैं अपने कस्टमर को अपने से जोड़ के रखूंगा उतना ज्यादा मुझे फायदा होगा। Am I clear? Right. Next comes the holistic marketing concept, मतलब कस्टमर को पूरी तरीके से अपने ऑर्गेनाइजेशन से एज अ फैमिली जोड़ लेना और उसके ओवरऑल सेटिस्फेक्शन का ध्यान रखना, उसके संग पूरा रिलेशनशिप मैनेजमेंट पे फोकस करते हुए चलना। CRM जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, कि कस्टमर आपसे कैसे जुड़ा रहे, राइट। अभी मुझे याद है कि लास्ट टू लास्ट ईयर ओनली जब हिंडई ने अपने पर्टिकुलर जो यहाँ पे शोरूम है जहां से मैंने कार परचेज करी, उस पर्टिकुलर शोरूम को कुछ पर्टिकुलर ईयर्स कंप्लीट हो गए थे, तो उन्होंने क्या किया, जितने लोगों ने 10 सालों के अंदर, ये जब से शोरूम ओपन हुआ था तब से जितने लोगों ने वहां से कार परचेज करी है उसके पूरे डेटाबेस पे कॉलिंग कराई और उनसे कहा कि सर हमारे शोरूम को इतने साल कंप्लीट हो गए हैं क्योंकि आप हमारे अच्छे वैल्यूएबल कस्टमर रहे हो और आपने हमारे यहाँ से कार परचेज करी है। हम चाहते हैं कि हम एक सेलिब्रेशन कर रहे हैं अपने यहाँ, राइट, हमारे पर्टिकुलर शोरूम के इतने ईयर्स कंप्लीट होने का, तो आप अपने फैमिली के साथ हमारे शोरूम पे विजिट करिएगा। वी आर थ्रोइंग अ स्मॉल पार्टी एंड वी वांट यू टू कम देयर। क्लियर? तो कस्टमर रिलेशनशिप अल्टीमेटली उन्होंने क्यों करने की कोशिश करी वहां पे ये कि उस दिन उन्होंने जितने उनके पास लेटेस्ट मॉडल थे वो सब लगा रखे थे उस जगह पर। तो अगर मान लो 100, अगर मैंने 2-2.5 हजार लोगों को कॉल करी है तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ 20 लोग तो आएंगे, राइट। अगर वो 20 लोग भी आ गए तो उनमें से 20 लोग अगर वो अपनी फैमिली को लेकर के आते हैं तो कुछ लोग तो लेटेस्ट मॉडल को देखेंगे, उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे और कंपनी ने उन्हें अपनी तरफ से एक छोटा गिफ्ट भी दे दिया जिसमें कंपनी की कोई इतनी ज्यादा कोई खास कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन घर पे जाके अगर वो 10 लोगों को ये वाली बात बता रहे हैं तो हो सकता है उनमें से कोई भी एक बंदा ऐसा हो जो शोरूम पे जाकर के कार परचेज कर ले। आपको लगता है कि लोगों को कॉल कराने की कॉस्ट, पार्टी थ्रो करने की कॉस्ट, एक केक को कट करने की कॉस्ट और प्लस कस्टमर्स को गिफ्ट देने की कॉस्ट, जो खर्चा निकलेगा टोटल, क्या वो एक कार की सेल से नहीं निकल सकता? और सर एक्सचेंज ऑफर भी देते हैं वो, और एक्सचेंज ऑफर भी दे देते हैं। तो अल्टीमेटली क्या होता है, वहां पे आपका जो फायदा है, जो बेनिफिट है, वो कहीं ना कहीं से निकल आता है। और आप तरीका क्या अपना रहे हो? बिल्कुल कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। आपका कस्टमर कोई बात भूल जाएगा लेकिन ये बात नहीं भूलेगा कि कहीं जिस जगह से मैंने कार से शोरूम से कार परचेज करी थी वो शोरूम मुझे अपने पर्टिकुलर सेलिब्रेशन में इनवाइट कर रहा है। Am I clear? कि कंपनी आपको ये फील कराने की कोशिश कर रही है दैट यू आर इम्पोर्टेंट फॉर देम लाइक एनीथिंग, लाइक नथिंग एल्स। Am I clear? Yes, sir. Fine. So concepts are clear to everybody? Yes, sir. Fine. Exchange concept, production, product, selling, marketing, societal and holistic.
नाउ 8th कॉन्सेप्ट जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जो कि स्लाइड पे मैंने नहीं लिखा है, लेकिन मैंने बताया कि आपको एमबीए में, एमबीए फाइनल ईयर में एज अ सब्जेक्ट में पढ़ा रहा हूँ इसको, वो कॉन्सेप्ट है डिजिटल मार्केटिंग। जो एरा है, जो शिफ्ट हो गया, इस एरा में डिजिटल मार्केटिंग में सातों के सातों कॉन्सेप्ट अप्लाई होते हैं, राइट? ये सातों के सातों अप्लाई होते हैं, लेकिन दो कॉम्बिनेशन में अप्लाई होते हैं, एक है ऑनलाइन कॉम्बिनेशन, एक है ऑफलाइन कॉम्बिनेशन। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में सातों एक्टिविटीज को परफॉर्म करना डिजिटल मार्केटिंग कहलाती है, राइट? ये सारे के सारे काम आप ऑनलाइन कैसे करोगे और ऑफलाइन कैसे करोगे, उसका पूरा कॉम्बिनेशन आज की डेट में डिजिटल मार्केटिंग, एक नया ट्रेंड चल रहा है, उसमें सारी चीजें होती है। क्योंकि आज सबको मालूम है आज की डेट में कंपनीज अपनी एडवर्टाइजिंग केवल टेलीविजन, फेसबुक, लाइक एफएम मीडिया या फिर न्यूज़पेपर्स में नहीं करती है। They have come out and they have started advertising on social media platforms also. Am I clear? तो वो पूरी इंटरनेट एडवर्टाइजिंग क्या होती है, कैसे होती है, कैसे हम उसको कर सकते हैं, ये पूरा डिजिटल मार्केटिंग में हमें पढ़ने को मिलता है। क्लियर है इतनी चीज? Right. So I'll be discussing about the core concepts of marketing in the next class. Before that, if any student wants to ask anything. No doubt, sir. Okay. But other than everything, I would like to tell you people कि जितनी भी चीजें मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपसे, चाहे वो एग्जाम्पल हो या वो पर्टिकुलर केस स्टडी हो, उसके बारे में सर्च जरूर करिए और एक बार पढ़ने की कोशिश जरूर करिए। और जितने भी एडवर्टाइजमेंट आ रहे हैं ना, उन एडवर्टाइजमेंट में आप अपने मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट्स को ढूंढने की कोशिश करिए। मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ, जितने एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वो एड कोई भी ऐसे नहीं है जो आपने नहीं देखी है, राइट? बस डिफरेंस इतना सा है कि मैं उसी में से आपको निकाल करके पढ़ा दे रहा हूँ और आप केवल वो एड देख करके ऐड चला जाता है टीवी से, और हम वेट करते हैं कि कब हमारा जो सीरियल हम देख रहे थे वो वापस आए, है ना? तो इससे पहले कि सीरियल का वेट करो, बेटर है कि जब एक ऐड आ रहा है तो उस ऐड में भी आपकी पढ़ाई छुपी हुई है, थोड़ी बहुत पढ़ाई उसी समय पे हो जाएगी तो ज्यादा बेटर रहेगा। Am I clear? नहीं ऐड वैसे सीरियल। Just a second, I'm taking the snapshot of the students present in the class. सर मेरी पहले लगा देना, रह जाएगी पीछे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मैंने पूरा कल highlight कर देना, highlight। आगे ही पूरी क्लास की अटेंडेंस भेज दी थी। होल्ड कीजिए प्लीज। Okay. Total 19 students are there, I think, in the class. सर 20 आपको मिला के। That's what. मुझे मिला के ना, मैं बात करूं स्टूडेंट्स की, वो बात अलग है। मैं अभी आप लोगों के संग पढ़ते पढ़ते सीखता रहता हूँ, तो आई एम आल्सो काइंड ऑफ अ स्टूडेंट। सर दैट्स आप नॉट अ टीचर नहीं होते ना, तो आप तो हमारे से भी छोटी उम्र के लगते हो कसम से। अच्छा पहले तो मुझे ऐसे ही लगा था। अच्छा। Well, no problem. I'm keeping it as a compliment. Thank you so much, Kripa. All right, students. So we'll be discussing about the core concepts of marketing in the next class. Till time, have a great time. Have a good day. Thank you so much. Thank you, Thank you, sir. sir. Thank you, sir. Thank you, sir.